Good morning, everyone. Today we are going to start exercise 2.5. We are going to continue exercise 2.5. Yesterday we did 4 questions of this exercise, and today when we are starting with the fourth question, we have to start today. And before we start, we have to do one more identity. Yesterday we did few identities of square and cubes, and today again we have the identity of square, but that is in case of trinomial. Now your identity is a plus b plus c whole square. This is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Right, now we are going to use this identity. We have trinomial here. When you have 3 terms, whether there is positive sign or there is negative sign, you have to apply this identity, and the sign will be adjusted with the identity, right? This identity also you have to learn. Now let me start with the first part of fourth question, that is x plus 2y plus 4z whole square, right? We have to expand, we have to find out its value. We will apply the identity same because we have 3 terms and the square is also there. That means we are going to apply this identity a plus b plus c whole square, which is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Now what is a here? According to the question, your a is x, b is 2y, and c is 4z. So wheresoever you are writing a, you have to write x. At the place of b, we have to write 2y whole square, plus at the place of c, we have 4z whole square plus 2ab. So 2 multiply x multiply 2y. 2x 2y plus 2bc. 2bc means second term, third term. So 2 multiply 2y multiply 4z plus 2ca. 2 multiply 4z multiply x. Right? Now let me simplify it. We will get x square plus 2 square is 4, y square plus 4 square is 16, z square plus 2 2s are 4, xy. 2 2s are 4, 4 4s are 16, y, z. And the last term is 2 4s are 8, x, z. Right? So this is the expansion of the given question, that is x plus 2y plus 4z whole square. We have expanded it by using the identity a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Means square of first term plus square of second term plus square of third term plus 2 multiply first term multiply second term, 2 multiply second term multiply third term plus 2 multiply third term multiply first term. So from here we have put all these values here and we have simplified to get the answer, right? Similarly, you can do yes. मैम ये ABC की जगह जो हमें टर्म में दिया हुआ है वो लिख देना है। हाँ बिल्कुल, आपके पास ये हमारा फॉर्मूला है बेटा। फॉर्मूला सिर्फ ये बताने के लिए कि जो भी आपकी पहली टर्म है वो आपने ए लेनी है, व्हाटसोएवर इज द सेकंड टर्म यू हैव टू टेक दैट एज बी, और जो भी थर्ड होगी वो आपने सी की जगह पुट करनी है, राइट? अगर इसमें नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन भी इसमें आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक नेगेटिव वाला करते हैं, ठीक है? आई एम नाउ मैम आइडेंटिटी लिखनी जरूरी है? बेटा प्रैक्टिस तो करोगे, आपको लर्न कैसे होगी कि ये आइडेंटिटी है, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग इट अगेन एंड अगेन। मैम लर्न होने के बाद पेपर में लिखनी जरूरी है? नहीं, फिर आप छोड़ सकते हो। चलिए, लेट वी come to the next. Now I am taking the question with negative sign, and here I am मैम ये आइडेंटिटी में मैंने तो कुछ और से करा है। कैसे, किस और से करा है आपने? देखो mx plus y plus z वाली है नहीं?
x प्लस हाँ वाई भाई, प्लस एक ही जेड बात वाला है है ना ना, उनमें, एक ही एक्स बात है स्क्वायर ना, प्लस वाई x प्लस स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। नहीं नहीं, वो दूसरी है बेटा, वो अलग है, ये अलग है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से हमारी आइडेंटिटी, जहां पर भी आपकी 3 टर्म्स है, -2x 5y माइनस 3z, ठीक है, जहां पर भी आपकी 3 टर्म्स है और स्क्वायर है, वहां आपने ये आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, सो अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Right now we have to apply this identity for this. अगर मैं इसे ये लिख रही हूँ तो इसके अकॉर्डिंग what is my x, what is my a, what the value I am going to put at the place of a, -2x. You have to take care of the minus sign also, because in our identity we have all the terms positive, but here we have negative, so negative will be put in the formula, right? So -2x will be a, 5y will be b, and -3z will be c, right? So let me put the values. -2x whole square plus b is 5y whole square plus -3z whole square plus 2 multiply first term multiply second term, 2 multiply -2x multiply 5y plus 2 मैम आपकी multiply वीडियो क्लियर second नहीं है। term. Just wait. Okay. Now 2 multiply, I have written second term multiply third term plus 2 multiply third term multiply first term, -3z minus 2x. Right? Now we are going to simplify it. Minus का square positive हो गया, 2 square is 4x square, and then 5y square, 5 square is 25y square plus minus का again square positive, 3 square will be 9z square. Now minus sign is there, this is plus sign, only one minus sign, so plus minus यहाँ आपका आ जाएगा minus, 2 to the 4, 4 5 the 20, 20x y, and the next term is again we have one negative, one positive, positive negative negative, and 2 5 the 10, 10 3 the 30, 30 y, and this is plus minus minus, so minus minus plus and plus plus plus, so your last term will be positive, 2 3 the 6, 6 2 the 12 x z. ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? बस आपने माइनस साइन का ध्यान रखना है। यस यस मैम, ये जो Yes. हमारी अभी इक्वेशन हमने लिखी है, इसमें अगर हमारी तीनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी तो आइडेंटिटी को चेंज नहीं होगी। नहीं, आप आइडेंटिटी बेटा सिंगल आइडेंटिटी रखो, सिर्फ आप उसमें वैल्यूज को नेगेटिव पुट करते जाओ, आप कितनी आइडेंटिटीज लर्न कर लोगे। ठीक है, जैसे आपकी वो भी आइडेंटिटी होती है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, आई एम इरेजिंग दिस, आफ्टर दैट आई एम एक्सप्लेनिंग। देखो, एक आपकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर, एंड द नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a माइनस बी होल स्क्वायर, विच वी डिड, और हमने दोनों को अलग से लर्न किया है। उसमें भी आपकी यही चीज होती है, अगर आप चाहे सिर्फ प्लस वाली ही आइडेंटिटी लर्न कर लेते हो, देन आल्सो इट इज गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ पॉजिटिव। और आपके पास अगर पॉजिटिव की आइडेंटिटी है और आप ये कह रहे हो कि आपने x माइनस वाई लिखना है होल स्क्वायर, तो a की जगह पे x, b की जगह पे -y, अगर आप पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी ले रहे हो तो इसको इसी में रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, अदरवाइज वहां से तो आपकी 3 आइडेंटिटीज, 3 क्या, अब जब आप कह रहे हो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, एक बार आपने तीनों पॉजिटिव वाली करी, फिर आप ये पॉजिटिव ये नेगेटिव वाली करोगे, फिर आप ये पॉजिटिव ये नेगेटिव वाली करोगे, आइडेंटिटीज तो बहुत सारी हो जाएंगी। 8 आइडेंटिटीज आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर आप साइंस चेंज करके आइडेंटिटी लर्न करोगे तो। ठीक है, ओके मैम।
So we have to learn only one identity, and from this identity we are going to get the results. Shall I come to the Ma'am, next question? Will you try? मैम जो साइन क्वेश्चन में होएगा वही लगा देना आइडेंटिटी में। हाँ बेटा डिपेंड करता है, अगर आपकी आइडेंटिटी, आप साइन को आइडेंटिटी के साथ ही कंपेयर करोगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बच्चे ये वाली आइडेंटिटी लेते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, साइन साथ लगाने के चक्कर में सपोज आपका क्वेश्चन है 4x माइनस 2y होल स्क्वायर, और मैंने कह रही हूँ कि ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, उसमें आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, वहां पर हम आइडेंटिटी भी, इसमें हम क्वेश्चन में कई बच्चे ये करते हैं गलती की आइडेंटिटी भी नेगेटिव वाली लगा रहे हैं और बी के साथ ये वाला साइन भी नेगेटिव ले लिया। समझ रहे हो? आई एम सेइंग अगर जो मिस्टेक होती है वो 2 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई माइनस 2y। एरर बताओ क्या एरर है इसको लिखने में? a स्क्वायर 4x b स्क्वायर माइनस ये माइनस 2y लिख दिया है। यस आई हैव डन दिस, टेकन दिस एरर, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी ही नेगेटिव वाली थी। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये नेगेटिव कैंसिल हो चुके हैं, बी की जगह पे सिर्फ 2y बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका 2y आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, राइट। ये एरर हो जाता है जब आप ये सोचते हो ना कि हमने तो इसको यही, जो इसका साइन है वही हमने ये लेना है, वो नहीं लेना, हमने आइडेंटिटी से कंपेयर करना है कि अगर यहाँ नेगेटिव है यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब b सिर्फ 2y के इक्वल हो गया। अगर ये आइडेंटिटी पॉजिटिव वाली हो फिर आप b को माइनस 2y लोगे। अंडरस्टूड? क्लियर? यस यस दोनों के साइन को कंपेयर करना है आपने, आइडेंटिटी एंड क्वेश्चन। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप ले लो, फिर अपना क्वेश्चन का जो भी साइन है उसको उसमें इंक्लूड कर लो। I am taking one more part, 1/4a minus 1/2b and plus 1 whole square. फिर से we have how many terms? 3 terms, 1, 2 and 3 terms, and square is also there. That means we are again going to apply the identity a plus b plus c whole square. ठीक है? This is equal to then a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Now let me know what is a according to the question. What I have 1 by 4a. 1 by 4 4a plus at the place of b minus 1 by 2b 2b minus 1/2b whole square plus c is 1 1 1 1 c is 1, and now let me put the other value, the value in the other terms also. 2 multiply a is 1/4a and minus 1/2b. I have written this term 2ab plus 2bc. 2 multiply my b is minus 1/2b, c is 1 plus 2 multiply c multiply a is 1/4a. ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लो। दिस इज 1/4 का स्क्वायर 1/16 1/16 a squared माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया प्लस b square plus 1/4b squared 4 1 plus 1 इसको आप minus ab by 4 प्लस minus ab by सॉरी 4 दिस इज 1 minus 1/4 ab, क्योंकि ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस 2 से आपने 4 कैंसिल कर दिया, सो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 विल बी 1/4 yes ma'am a b, ये आपका a b आ गया। एंड नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस टर्म। ये टर्म है मेरी 2 से आपका ये 2 कैंसिल प्लस माइनस माइनस, so it will be minus b and then 2 and 4 they will get cancelled, ठीक है। a/2 you will be left with, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, आप यहीं पे एलसीएम ले सकते हो। यू कैन टेक द एलसीएम ओवर हियर और उसका स्क्वायर करके बाहर निकाल दो, जो बाकी टर्म्स रह जाएंगे आप उसको सिंप्लीफाई करते रहो, उसमें आप आइडेंटिटी लगा दो, उसमें आपके फ्रैक्शंस थोड़े से कम हो जाएंगे, बट अदरवाइज दिस इज आल्सो फाइन, ठीक है।
चलिए Okay, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ दिस आइडेंटिटी. अभी तक हम कर रहे थे एक्सपैंड. एक्सपैंड का उल्टा क्या होता है? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सपैंड? जो टर्म एक्सपैंड होती है उसको क्या करते हैं? उसको कहते हैं फैक्टराइज. ठीक है. Yes, ma'am. xy minus 24yz minus 16xz. ठीक है. Now you are given this term and we have to factorize. अब इसको देख के क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है? लुक, यहाँ पे स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, कुछ कुछ आइडेंटिटी वैसी मिलती जुलती सी लग रही है. ए बी सी सी सी. यस, we are going to apply the same identity a plus b plus c whole square, क्योंकि मेरे पास कुछ कुछ यहाँ पे टर्म्स मिलती हुई हैं. पहली तीन टर्म्स का स्क्वायर है मेरे पास. दूसरी टर्म्स में आगे ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट नजर आ रहा है. ठीक है. अब मुझे इसको इस फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करना है. इस फॉर्म से then I will come आपकी to स्क्रीन this form. ठीक. पॉज हो Yes. चुकी है. क्लियर नहीं है. No, ma'am, ठीक है. I don't think so. From my side it's okay. ठीक है. Okay. इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. आई वॉन्ट द स्क्वायर ऑफ द टर्म. मेरी पहली तीन टर्म्स ऐसी होनी चाहिए जिनका स्क्वायर हो. ठीक है. इन दिस टर्म आई हैव द स्क्वायर ऑफ x ओनली. इट इज नॉट द स्क्वायर ऑफ 4, right? So I am going to write 4x square as 2x whole square. Similarly, 9y square I'll write as 3y whole 3y square. whole square. Plus That's it. 16 is the square of 4. 4z So 4z whole square. देखो यहाँ से मुझे क्या पता चला? I came to know that my a is 2x, b is 3y, c is 4z. Now according to the identity I am writing 2ab, 2bc, 2ca plus 2ab, 2 into 2x into 3y. ठीक है. अब एक बार चेक कर लेते हैं. मैंने इसको इसके अकॉर्डिंग लिखा. क्या ये और ये सेम है? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. So 12xy. ठीक है. That means मैंने इसको इस तरह से लिख दिया. Right. Now I am taking the other term. मेरे पास होनी चाहिए 2bc. 2 into second term multiply third term. 2 multiply 3y multiply 4z. ठीक है. क्या ये टर्म अब इसके इक्वल आ गई? 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24y है. ठीक है. हाँ जी. मैम साइन तो नहीं आया. मैम Yes, साइन नहीं yes, आया. लेकिन साइन नहीं आया. ठीक है. बिल्कुल 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 साइन नहीं आया. राइट. माइनस साइन को कैसे लेके आए? ये देखो माइनस 4z. यहाँ पर आपका ये टर्म नेगेटिव. ओके, वी हैव दिस टर्म नेगेटिव, दिस टर्म नेगेटिव. मेरे पास ये दो टर्म्स नेगेटिव है, बाकी सारी पॉजिटिव है. अब इन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है? वी हैव z कॉमन. ठीक है. दैट मींस वो टर्म जिसमें z आ रहा होगा वो नेगेटिव के साथ होगी. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टर्म योर साइन विल बी नेगेटिव. इसका मतलब ये है कि आपकी ये वाली टर्म जो z वाली है ये नेगेटिव है. सो यू हैव टू पुट z है नेगेटिव. टेक द थर्ड टर्म एज नेगेटिव. ठीक है. जैसे ही आपकी थर्ड टर्म नेगेटिव हो गई, अब जहां पर भी आपका z आएगा वहां पर नेगेटिव 4z आएगा. अब देख लो, अब साइन सेम हो गया. ठीक है. प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 yz. ठीक है. अब लिखते हैं लास्ट टर्म प्लस. अकॉर्डिंग टू माई आइडेंटिटी इट मस्ट बी प्लस. c multiply a, 2 multiply c is now 4z. So minus 4z multiply a is 2x. चेक कर लें एक बारी सेम आई है या नहीं. 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस माइनस माइनस zx. Yes, ma'am. सही है, ma'am. x. ठीक है. सेम. ओके. चलो, अब मेरी ये आइडेंटिटी बिल्कुल ऐसी बन चुकी. अब मुझे इससे यहाँ तक पहुंचना है. ठीक है. a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर लिखना है. दैट मीन्स पहली तीन टर्म्स के स्क्वायर आप हटा दो, विदाउट स्क्वायर लिख दो और स्क्वायर बाहर कॉमन चला गया. सो इट विल बी 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर. क्लियर? ये मैंने कर दिया इसे फैक्टराइज. आई हैव गॉट टू फैक्टर्स एंड बोथ द फैक्टर्स आर सेम. वन इज 2 plus 3y minus 4z, other is also 2x
प्लस 3y माइनस 4z। क्लियर? यस मैम। दोबारा से सुनो, ये यहाँ पर फैक्टराइज करने को बोला है। मुझे कुछ कुछ ये अपना क्वेश्चन इससे मिलता जुलता लग रहा है। मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकंड का स्क्वायर है, थर्ड का स्क्वायर है, फिर दो दो का प्रोडक्ट है, राइट? 6 टर्म्स आर देयर, इसमें भी 6 होती हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस आइडेंटिटी, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इन दिस फॉर्म। ठीक है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर पूरी टर्म का स्क्वायर होना चाहिए पहली 3 में। So I have written it as 2x whole square, this one as 3y whole square and this one as 4z whole square. उसके बाद नेगेटिव साइन कहाँ से आया? मेरे पास ये दो टर्म्स नेगेटिव हैं, इसमें हमारी जो भी कॉमन होगी टर्म, in these two terms we have z common, that means इन तीनों में से जिसमें भी z आ रहा है वो नेगेटिव लेनी है। So that is why I have taken this term as negative. बाकी टर्म्स को भी मैंने 2ab की तरह एक्सप्रेस किया है, 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y, 2 मल्टीप्लाई bc, 2 मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई माइनस 4z and 2 मल्टीप्लाई माइनस 4z मल्टीप्लाई 2x to ca, and then I am going to write this from this to this. ठीक है, I'm writing it as a plus b plus c whole square. My a is 2x. Yes, बोलो ईशान। मैम अगर 4 की जगह 72 होता तो उसका वो कैसे निकालते? कहाँ पर? मैम कहाँ पर 4 ये आइडेंटिटी में, यहाँ पर? यहाँ अगर 72 होता, चलो अब इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, इसको इरेज कर दूं। यस मैम। चलो ईशान के क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हमारे पास 4 की जगह 72x का स्क्वायर होता तो हम क्या करते? मेरे पास 4x स्क्वायर था, मैंने उसको इजीली लिख दिया दैट दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अगर मेरे पास 16x स्क्वायर होता है, आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज 4x होल स्क्वायर। 72 पे मैं अभी बाद में आती हूँ, बिफोर दैट आई एम टेकिंग 8x स्क्वायर। अगर मेरे पास 8x स्क्वायर होगा तो मैं उसे कैसे लिखूं, किसका लिखूं स्क्वायर? ठीक है, आपके पास जो भी टर्म गिवन है आप उसका रूट ले लो, रूट 8x होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी यही किया है। आई हैव नॉट टेकन इट डायरेक्टली एज, आई हैव टेकन इट एज रूट 4। अब मुझे यहाँ पर पता था कि रूट 4 2 होता है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट एज 2x होल स्क्वायर। यहाँ पर भी 16 था तो इसका रूट 16 का स्क्वायर कर दिया, सो दैट रूट एंड स्क्वायर दे गेट कैंसल्ड, राइट? तो मेरे पास ये बच गया रूट 16 इज 4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैंने सेव किया है, 8 का रूट 8 कर दिया, रूट 8x होल स्क्वायर। अब रूट 8 को करते हैं ब्रेक, 2 2 4 2 8। ठीक है, इसमें पेयर्स सिर्फ एक ही पेयर बना है 2 का, एंड 1 2 इज लेफ्ट इनसाइड, सो दिस विल बी 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर। क्लियर हुआ ये? इज दिस क्लियर? जो भी है उसको आपने पूरे का स्क्वायर अगर बनाना है तो उसके रूट का स्क्वायर लिख दो, क्योंकि रूट का स्क्वायर लिखने से वो आपका सिर्फ बचता तो 8 ही है। ठीक है, सो व्हाटसोएवर इज गिवन वी आर गोइंग टू राइट इट एज रूट स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रूट। जो पेयर्स बनते थे आपने बाहर निकाल दिए, 2 इज लेफ्ट इनसाइड, सो इट इज 2 रूट 2x स्क्वायर। अब आते हैं 72 पर। I have the question 72x square. 72 को भी root 72x whole square लिख दें। Now root 72, let me break root 72. Root 72 will be 2, 2, 3, 3, 2. हो गया 72? ठीक है, 72, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 2s are 72. ठीक है, and x whole square. अब आप इसमें से पेयर्स को निकाल दो बाहर। Here we have the pair of 2 and one pair of 3. 2 और 3 आपके बाहर आ गए, that means you have 6 outside the root. 6 root 2x whole square. उस केस में आप a की जगह पे या b की जगह पे जहां पर भी ये आ रहा होगा रूट 72, एट दैट प्लेस यू विल राइट इट एज 6 रूट 2 स्क्वायर।
Clear to everyone? Clear, Ishan? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग लाइक दिस, आपने पहले ही क्लियर करवा दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। This is your fifth question, second part. And then we have minus 2 root 2xy plus 4 root 2yz minus 8xz. ठीक है, we are going to write it as, क्या लिखूं, किसका स्क्वायर लिखूं? हरी अप नाउ, लेट मी नो। √2 क्या लिखूं? √2 यस, √2 2x स्क्वायर √2 y स्क्वायर, 8 का क्या लिखूं? Z square. What do I have to write? 8? हाँ जी, 2 root 2 8 को रूट Z 8 लिख दें। हाँ जी, No. फिर आप इसको लिखोगे 2 root 2 एंड नाउ दिस इज 2 root 2 z स्क्वायर। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं, ये नेगेटिव टर्म आ गई और एक ये नेगेटिव टर्म है। व्हाट इज कॉमन टू बोथ द टर्म्स? X. क्या कॉमन है दोनों में? x इज X. कॉमन, दैट मीन्स जो भी आपकी x वाली टर्म है इन तीनों में से, दैट टर्म यू विल हैव टू टेक negative, right? So your x term is negative, means your first term is negative. Now we are going to write it as per the identity 2ab, 2 multiply minus root 2x multiply y. Is it now the same as this? Minus 2 root 2xy, it is minus 2 root 2xy, same. And now we are going to write the second term, next term, that is 2yz, Yes, ma'am. 2y into 2 root 2z. And the last term plus 2xz to multiply the first term minus root 2x multiply last term 2 root 2z. Clear? Is it the same? 2 into 2, 4. Root 2 into root 2 is 2 and 4 2s are 8 plus minus minus xz. 8x. ये आपका xz हो गया, exactly the same. Now we are going to write it in terms of this. क्या लिखूं? This is a square, b square, c square, 2ab, 2bc, 2ca, which is equal to Minus 2 root 2x yes, minus root 2x plus y plus 2 root 2z c is whole square. yes whole square. Very good, thank you. We have to write a plus b plus c whole square. आपने सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स को बिना स्क्वायर के लिखना है एंड देन यू हैव टू टेक स्क्वायर कॉमन। ठीक है, स्क्वायर आपका बाहर चला गया एज पर द आइडेंटिटी। सो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर टू ऑल? Now we are proceeding to, we cannot go to the next question. I'm just explaining. आपको कल आइडेंटिटीज लिखवाई थी बेटा a plus b whole cube की। Can anybody tell the identity? A plus b whole cube is, whole cube you don't have to turn A the cube pages. plus B cube plus 3AB A plus B. Yes, a plus b whole cube is a cube plus b cube plus 3ab plus 3ab into a plus bracket a b. plus b. Now you have to apply this identity to find out the value of this 2x plus 1 whole cube. ठीक है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है, that you are given 2 terms, cube is there and you have to choose the identity, put all the values over there. I think I have made this thing clear to you, that how you have to put the values in the identity, how you have to select what is A, what is B, right? And I am expecting that all of you will be able to do this question yourself, right? So now Yes, this is ma'am. your homework that you have to complete it, right? Chaliye, time is getting over. Let me end the class. Thank you and have a good day.